Assalamualaikum everyone. I hope all are staying healthy and fit. Welcome to another exciting episode of All My Days podcast only on Let's Chat. Today's topic is about wandering persona. It's all about showing wonders and creating magic with the shining, with the reels, and obviously the social media. We have an amazing persona who is known for his drags and also for his all the content that is being done by FKP partner. We are very happy and fortunate that within a short frame of time, I got a time to share the screen with him. And it's a time to let's know about his journey and experience and persona. It's none other than Ehsan. Thank you so much, Ehsan, to accept my invite. Welcome to All My Days podcast. How are you doing today? I am doing very well. Actually, thank you to come here from very far and मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ जो है वो पॉडकास्ट करूँ। वही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे he wants to be in a podcast. पर देखो किस्मत का क्या खेल है and this is the first persona जो हम लोग ने 1 week नहीं 3 दिन में I think. Yes, around 3 days. 10 and we are here. Yeah. So Ehsan, what was your first reaction when our team approached you? It was actually very exciting for me because I was looking for a podcast from very long time. It's around 2 years I was looking for a proper podcast. So when your team reaches us, I was very happy. So are you excited for the segment number 1? I am. Segment number 1 is knowing your persona. Ehsan कौन है और क्या सोच के आप यहाँ पे आए and क्या आपका जिंदगी रहा and how you converted into a wondrous blogger and having so much of content. Ehsan is a very simple personality actually. मेरी journey कैसे start हुई? I came here in UAE for the first time. It was just a visit. It was just a tourism visit. Taking a job also. So I got a job within 3 to 4 days when I reached here in UAE in 2013. 6 months were very hard for me. First 6 months were very hard for me. Then slowly जैसे जैसे time गुजरता गया, यहाँ प्रॉब्लम्स भी हुए. उसके बाद जैसे इंसान अपनी जिंदगी से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखता है, चीज़ों को सीखा और उसके बाद I was single at that time and I got married in 2019. Oh, so fast. Yeah, 2019 I got married and after that मेरे जो working hours थे, those was very difficult. तो उस वक्त मैंने सोचा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि in 2019 I find out कि social media एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो in future it will relate almost everything of the world. तो है. ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त के from business to influencing, from influencing to tourism, हर चीज सोशल मीडिया से कनेक्टेड है. तो उस वक्त 2019 में मेरा ख्याल ये था कि मुझे जो है ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा सा डिफरेंट. एंड ऑन द अदर हैंड माय वाइफ, क्योंकि मेरा वर्किंग स्केड्यूल बहुत डिफिकल्ट था, वो बोर होती थी घर में, तो हमने आपस में डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए. तो उन्होंने और मैंने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम जो है ना एक नया जो है वो चीज़ स्टार्ट करते हैं. और ऑनेस्टली उस वक्त हमारा जो है वो गोल ऐसा नहीं था कि हम और हमें पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया इतनी जो है वो हाइट के ऊपर चला जाएगा. इट वॉज लाइक कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, अपना मैसेज लोगों तक कन्वे करने की कोशिश करेंगे, जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों तक लाने की कोशिश करेंगे. तो जब ये सारा कुछ चल रहा था तो इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें डिफरेंट हुई, जब हमारा कंटेंट लोगों ने पसंद किया, मैंने ऑल ओवर मार्केट देखा कि यार इट इज़ समथिंग वेरी क्रेजी कि जो आज इतना तेज ग्रो हो रहा है कि मतलब हर कोई आपको रीच आउट कर रहा है कि यार आप आए हमारे साथ कोलैब करें, आप आए हम आपको पे करते हैं, आप हमारा कंटेंट करें. तो ये जो है इन फ्यूचर एक ऐसा काइंड ऑफ बॉम्ब बन जाएगा कि इसके बगैर कुछ भी नहीं चलेगा. राइट नाउ आप देख सकते हैं इट्स 2024. एवरीथिंग फ्रॉम गैराज वर्क टू एयरलाइंस टू एवरीथिंग, हर चीज सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, किसी ना किसी रूप से वो कनेक्ट हो रही है. और इंस्टाग्राम है, whatever you want to search on Instagram you can do it. Exactly. जो भी चीज आपको पूछनी है इंटरनेट से, अगर आप इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं you can easily get on it. Yeah. So that was the reason. ये एक छोटी सी जर्नी है मेरी, कोई इतना लंबा चौड़ा सिस्टम है नहीं इसके अंदर. To be honest, really कहते हैं कि
You never know कि थॉट कहाँ से कहाँ इंसान का सोच बदल दे, बल्कि when we were trying to figure out कि कौन सा एंगल बेटर रहेगा, so suddenly a thought came and we moved to this angle. So having said that, हमेशा इंसान का सोच में बहुत चीजें चेंज होते हैं. According to you, आपका ऐसा क्या सोच था जो आपको लगता है बहुत चेंज हुआ and really it has impacted the youth? मेरी सोच सोशल मीडिया को लेके बहुत पॉजिटिव थी पहले, और मुझे लग रहा था कि चीज़ें जो है इन फ्यूचर चेंज होंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एज ऑफ सडन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा. तो ये एक ऐसी सोच थी मेरे, जो मैं अब आज बैठ के सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार 2019 द डे व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन सोशल मीडिया, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन वी हैव मेड इन आवर लाइफ. बट कहते हैं ना कि सोशल मीडिया हमेशा रियलिटी के साथ भी बहुत चैलेंजेस लाते हैं. ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट कि हमेशा आपको फ्रूटफुल या पॉजिटिविटी मिले. सो व्हाट आर द सम ऑफ द चैलेंजेस यू हैव गॉन थ्रू ड्यूरिंग योर करियर या योर पर्सनल लाइफ दैट रियली इम्पैक्टेड यू एज अ स्ट्रांग पर्सन? देखें, सोशल मीडिया के साथ साथ आपको अपनी जो है वो जो पर्सनल लाइफ है ना उसको मैनेज करना काइंड ऑफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज अ मैंने तो बाहर जाना है, मैंने बाहर जाके काम करना है, अगर कोई चीज़ पोर्ट्रे करनी है या कोई चीज़ कोई वीडियो बनानी है, अपने आप को सामने लेके आना है, तो ये काम मेरे हिसाब से थोड़ा सा आसान है निस्बतन वो काम जो मेरी वाइफ को घर पे करना पड़ता है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल चिल्ड्रन इन होम. ठीक है, तो जब आप बच्चों को संभाल रहे हैं और उसके बाद घर के सारे मामलात को संभाल रहे हैं और उसके बाद आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, क्योंकि जो एडिटिंग काइंड ऑफ सारा स्टफ है वो मेरी वाइफ करती हैं. Oh, So that she is should most be here difficult things. today. Instead of Yeah. she is the mastermind there. Yeah. So she is actually doing the most difficult job in Instagram. जो भी प्लेटफॉर्म है मेरा, तो मतलब मैं अपने काम को बहुत इजी लेता हूँ इस वे में कि मैंने क्या करना है, मैंने जाके बोलना है, प्रोडक्ट को जो है वो पोर्ट्रे करना है, लोगों को बताना है, दैट्स इट. उसके बाद आपको पता है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते हैं, इट्स नॉट दैट इजी कि आप बस जाते हैं और एक वीडियो बनाते हैं और आगे No. फिनिश. ऐसा नहीं है. No, You need thank hours to edit the video, to convey the best part of the video to the audience. Exactly, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा एक पर्सोना था जो 3 to 4 hours का शूट था, and to make to the best 30 minutes, hands off to the team. It's amazing. 30 minutes to change from 4 hours, it's recommendable. So yeah, editing is very challenging. Yeah. So the thing is, right now you're telling me that your team have done that 5 hours podcast into 30 minutes. Yeah. तो आप सोचें कि उनको कितना टाइम लगा होगा ये करने में. Exactly. The message to everyone ज़्यादा मत बात करो. कि नहीं बात करो जो आपके दिल में है, it's okay, लेकिन try to make things shorter. Exactly. That's the सोशल point. मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखें आप स्वाइप कर रहे हैं, आप और मैं कोई भी स्वाइप कर रहे हैं, तो अगर हमें उस कंटेंट के अंदर जान नजर नहीं आएगी ना, तो हम वी विल स्वाइप आउट. Exactly. कंटेंट में जान बस 3 to 4 seconds का काम है बस. Yeah, that's very true. So इसी का साथ when you said कि like first 3-4 seconds are most important. Of course, yes. According to you, आपका कौन सा ऐसा रील था जो इतना वायरल हुआ that yeah, आपको तभी लगा कि नहीं, content is your best part of your job. ऐसी बहुत सारी रील्स हैं जो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ऊपर गई थी, और उसकी वजह से 2 चीजें आई थी. एक तो हमारे पास काम आना स्टार्ट हो गया था Wow. उन रील्स की वजह से हमारे पास काम. उसके अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. एक फर्स्ट 3 seconds to 4 seconds जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके व्यूअर को कैच कर लेती हैं, उसको रोक लेती हैं, भाई रुक जा, देख पूरी वीडियो. तो दूसरी चीज उसके अंदर ये थी क्रिएशन. वक्त के साथ साथ फ्रॉम 2019 टिल द जर्नी ऑफ 2024 हम वक्त के साथ साथ हमें पता चला कि कैमरे के कौन से एंगल से क्या चीज को शूट करना है. Yeah, दैट that's इज वेरी true. इंपॉर्टेंट. That I have seen today. Example. Yeah. तो जब ये चीजें आपको आहिस्ता पता चलती जाती हैं, इट्स नॉट लाइक कि कोई भी बंदा आएगा वो 2-4 दिन 5 दिन के अंदर इंस्टाग्राम और टिकटॉक स्टार्ट करेगा. इट कुड बी लक, लेकिन अगर आपको चीजों को प्रॉपर वे में करना है तो इट टेक्स टाइम. Yeah, for sure. एंड विद ऑल दिस, आप टीम वर्क इज द की. Yeah. Nobody can do the things like one man show. ये बहुत ही ज्यादा लकी लोग होते हैं जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून होते हैं, जिनको चीजें जो है ना वो कहते हैं ना भाई कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई सारी उम्र सफर में ही रहा. तो भाई द जर्नी इज डिफिकल्ट. जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है, कीप दैट इन माइंड, इट विल टेक टाइम. सब्र रखना है और काम इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे. कहते हैं सबर का फल मीठा होता है. जितना सबर करो बेशक उतना फल
मिलेगा. And that is for sure true because initially जब मैंने start करा था podcast, I was like having hazard कि कहाँ से क्या होगा क्या नहीं. But trust me, changes है. There is massive changes. You can see from our first pro to now, it's really changes. It is happening because एक तो सब्र होना चाहिए और इंसान को अपने आप को इतना काम रखना चाहिए कि नहीं काम आएगा. And social media definitely gives a revenue, bro. भाई ऐसा बहुत दफा हुआ है Yeah. कि मतलब आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान डाल रहे हैं कंटेंट के अंदर एंड नथिंग, देयर इज नो आउटपुट. वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि यार सब्र कर, कुछ नहीं है, चल जाएगा, एक वक्त आएगा कि आपका फेस रिकग्नाइज होगा. और मेरे हिसाब से सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जिसको आपको सिर्फ पॉजिटिव वे के अंदर लेना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट पोस्ट करना चाहिए. आपको जो अल्लाह ने शक्ल दी है, आवाज दी है, आपको जो टैलेंट दिया है, इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि वो उस टैलेंट को सिर्फ पॉजिटिव वे में कन्वे करे. नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए. भाई वी हैव सिंपल लाइफ. हम काम पर जाते हैं, घर आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिनिश. आई एम लिविंग इन यूएई फ्रॉम लास्ट 10-11 years. आई हैव सो मेनी बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया. That's what here it's one of the fusion culture में कहता हूँ ना कि आपको बहुत सारी personalities मिलेंगी. Many countries will find that they bring out a lot in our table and we should value it before it gets late. So how about challenges when it comes, you know, as you're from Asia, so it's not that कि घर में हमेशा positive ही हो. बहुत सारे लोग होते हैं जो हसद, वसवसा, रुकावट देते हैं जिंदगी में. So what are some of the challenges we face within the family and how you overcome such negativity? देखिए मेरी सोच इस मामले के अंदर बहुत डिफरेंट है. देखिए मेरे हिसाब से हसद जो है ना वो देयर इज इट्स फैक्ट, वो तो होता ही है. हाँ. ठीक है. अब मेरी सोच ये है कि जो भी चीज अल्लाह ताला ने आपको दी है इट्स डायरेक्टली कम्स फ्रॉम अल्लाह. Yeah. राइट. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग, you have a nice car, I have seen the car. तो हसद और रश्क के अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंस है. हसद और रश्क ये बहुत करीब करीब की चीजें हैं. हसद क्या है? शिट यार इसको गाड़ी मिल गई. अब हसद का और प्रो लेवल क्या है? अरे भाई उसको मिली, मुझे मिले ना मिले, इसकी छिन जाए. दैट्स प्रो लेवल ऑफ हसद. अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट रश्क है जो इसके बहुत करीब है. यार सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको गाड़ी दी है, माशाल्लाह. या अल्लाह, अल्लाह ताला इसकी गाड़ी के अंदर इसकी गाड़ी को इसको नवाजे ये गाड़ी और अल्लाह मुझे भी दे. That's रश्क. ठीक है. So now the point of view कि गाड़ी या whatsoever you have that is दूसरों की नजरों के अंदर या किसी की नजर में भी वो हसद है कि वो जो भी चीज है, जो भी अल्लाह ताला ने जिस भी चीज से आपको नवाजा है वो चीज अल्लाह ने आपको दी है. जब अल्लाह ने आपको एक चीज दी है तो अगर मैं हासिद हूं तो भाई मैं फिर आपसे हसदगारी नहीं रहा. Exactly, that's the true fact. इसलिए मैं कहता हूँ ना क्यों ये सब करने का जब इंसान का जिंदगी इतना इम्पोर्टेंट है और क्या पता टुमारो क्या रहा है. You never know. You don't know कि कल क्या पॉजिटिव है, क्या इम्पैक्ट है. आपका हर एक सोच इतना इम्पैक्टफुल रहता है. इसी के साथ जैसे आपने घर के बारे में जिक्र किया, इट्स नॉट फेयर टू आस्क ऐसा क्या चीज़ है जो आप अभी भी अमल करते हैं अपने अम्मी और अब्बू का, जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी फॉलो करें और सब फॉलो करें. देखिए मेरे जो पेरेंट्स हैं, माय फादर हैज पास्ड अवे और माय मदर शी इज लिविंग विद अस नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह. तो द बेस्ट थिंग जो बचपन से हमने सीखी है ना, हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया है वो पॉजिटिविटी. वो पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग है. आपने नेगेटिव चीजों को देखना ही नहीं है. नेगेटिव थिंग्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट हर इंसान के अंदर से एक एनर्जी निकल रही होती है. अगर मैं एक नेगेटिव पर्सन हूँ तो भाई मेरे नेगेटिव होने की वजह से दूसरे लोगों के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उसका. अगर मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ तो उसका भी इम्पैक्ट दूसरे लोगों के ऊपर पड़ेगा. अब जो चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स से हमेशा सीखी है, उन्होंने एक चीज़ जो हमें सिखाई है वो ये है कि बेटा आपने दूसरे का नुकसान नहीं सोचना. आपका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इट्स ओके, लेकिन आपने किसी भी दूसरे इंसान का नुकसान नहीं सोचना. आप किसी भी वर्क फील्ड के अंदर जाते हो, कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो,
आप कोशिश करो कि सबका फायदा हो। अगर सबका फायदा नहीं होता तो उसमें से कुछ का फायदा हो। अगर उसमें से कुछ का फायदा नहीं होता तो एटलीस्ट जो बंदा वो काम कर रहा है उसका फायदा हो। चाहे अपना थोड़ा सा नुकसान कर लो, लेकिन दूसरे इंसान का हमेशा फायदा सोचो। उनसे पूछो जिनका नहीं है। आई रियली अंडरस्टैंड कि बहुत सेंसिटिव है, बट देन पीपल आजकल के दौर ना जेनजी कहते हैं जिसे, माँ बाप के वैल्यू नहीं समझते। वो लोग आजकल अगर माँ बाप के वैल्यू समझते तो इतने ओल्ड एज होम नहीं होते हमारे आसपास सोसाइटी में। सो वी ऑलवेज से दैट वैल्यू बिफोर इट्स टू लेट। अगर बहुत लेट हो गया पछताने के सिवा कुछ भी नहीं। भाई इस दुनिया के अंदर आपको पता है कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको देखने का ना आपको सवाब होता है। एग्जैक्टली। सिर्फ दो चीजें हैं दुनिया के अंदर जिसको आपको देखने का भी सवाब है। एक, आप काबा के सामने बैठे हुए, हाँ, काबा को देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सवाब है। और दूसरी चीज, योर पेरेंट्स। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सुबह उठते हैं, जाते हैं, उनको देखते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, सवाब है। Yeah, that's very true. It's too much, but then what to do? Before I end segment number 1, really I don't want to end because I'm getting so much of information from you. As Ehsan, what's your strength and what's your weakness? Somewhere don't tell your weakness to anybody. That's a fact, but then you have to say at least इतना नहीं, but कुछ तो होगा। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी फैमिली है, और मेरी जो वीकनेस है वो भी मेरी फैमिली है। With that note, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि फैमिली जब वीकनेस में आए then you have to keep it aside because दुनिया बहुत जालिम है भाई। So you never know what when the internally politics comes and things get vanished. So with that note, we are ending our segment number 1, that is knowing your persona, where you have seen Ehsan ने कुछ ऐसे बातें बताई हैं जो really वाकई सच है। And I always believe that the fact and the reality only comes when you are into practical life. We'll move to our segment number 2, that is this and that. So Ehsan, this and that में हमारे व्यूवर्स ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। It's your thought, so you should let us know. According to the viewers, national wise बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं लाइक लोगों के लाइफ में। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कंटेंट ज्यादा बनाना चाहिए या शुड बी लिमिट विद द कंटेंट? नो, इट डिपेंड्स कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं। अगर आपका कोई भी कंटेंट जो सोसाइटी को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो आपको जरूर वो कंटेंट बनाना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, बल्कि यू हैव टू गिव दैट कंटेंट योर बेस्ट। हाउ अबाउट मोनेटाइजेशन इज नाउडेज वेरी ट्रेंडिंग, हर चीज मोनेटाइजेशन चल रहा है। So according to you, what do you think? You should initially monetize, या you have to wait till you grow your page? I think मोनेटाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसको जब मतलब कि आपको खुद इस चीज को रीच आउट करना है, आपको खुद देखना है कि आप जो कंटेंट बना रहे हो क्या वो कंटेंट जो है वो पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर रहा है पब्लिक की तरफ, या आपका कंटेंट के अंदर इतनी जान है कि आपके कंटेंट से सामने वाले बंदे को फायदा मिल रहा है। इफ सामने वाले बंदे को आपके कंटेंट से फायदा मिल रहा है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज यू हैव टू वेट। How about techniques? Because these days, you know, techniques बहुत high version में जा रहा है. So you should invest in the pro technique. Yeah, you should be in the normal technique which is going on. I think invest in a technique is very important. आपको time to time चीजों के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर the most important thing is camera. अगर आपके पास proper कैमरा नहीं है जिससे आप लोगों को पॉजिटिव चीज दिखा सको, एक अच्छी चीज दिखा सको, एक अच्छा मतलब के विजन दे सको, तो उसका फायदा नहीं है। How about the Gen Z modern era? क्योंकि अभी बहुत सारे new innovative products upgrade हो रहे हैं and people just put randomly anything. Does it is suited or you think it is risky or you need to try with the review first? देखें, किसी भी चीज को इस्तेमाल करने में रिस्क होता है, बट आई थिंक यू शुड ट्राई द थिंग्स। आपको चीजों को ट्राई करना चाहिए, बट ट्राई करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर उसके रिव्यूज देख लेने चाहिए। अगर वो चीज आपको लगता है कि आपके काम के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी तो यू शुड डू इट। How about the millennium? Because आज की जो दौर पे 3 लाइन बहुत है, millennium is us, Gen Z is the one which is coming. You can see कि दोनों बहुत टक्कर दे रहे हैं in terms of challenges, in terms of anything collapse. So do you think it's a positive impact or the negative impact? It depends, bro. कि आप चीजों को किस तरह से लेते हैं। There should be a professional jealousy in everything. तो अगर आप चीजों को बेहतर कर रहे हैं और सामने वाला भी बेहतर कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी चीजों को improve करने की जरूरत है। That's it. And this time I have known that if you use social media, you should know with the hashtag and with the grammars. Is it true या ये just like rumors है? देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो आपके कंटेंट की जान है।
अगर आपके कंटेंट में इतनी जान है कि आपके पहले 3 सेकंड के ऊपर आप पब्लिक रुक रही है, तो हैशटैग्स एंड कीवर्ड्स डजंट मैटर दैट मच. That's very true. इसी के साथ we are ending our segment number 2, which is this and that, and we'll move to our segment number 3. That's rapid fire, one of my favorite segment. Let's see how Ehsan play with us. Our rapid fire. So, are you excited? I am. And as I mentioned to you in the rapid fire terms and condition, timer is set, डरा रहे हो मुझे. and you have to answer very fast, no thinking. ठीक है? Shall start. Favorite movie? Venom. कौन सा? Venom. Okay, I don't know because I'm not fond of movies. What was your first salary? 2000 dirhams. And what did you do with the first salary? I send it to home. What's your favorite music? English. What is your go-to dinner? Dinner. I like desi dinners. Find yourself in one word. Nothing. What do you enjoy most? Friends. Expensive gift or homemade gift? Homemade gift. Do you believe in learning or you believe in being perfect? I believe in learning. Fresh food or fried food? Fresh food. What is your deepest fear? Family. What is the biggest drawback in you? Nothing. ऐसा कोई लफ्ज या कोई ऐसी चीज आपने सुना किसी ने आपको बहुत ऐसे नॉर्मल बताया पर आपको दिल को छू गया वो बात? ऑलमोस्ट हर ऐसी चीज जिसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज हो वो दिल के करीब होती है. What people misunderstand about you? I think they think I'm arrogant. What makes you sad? If my children they're sad, then I'm sad. Okay. What do you want your loved ones to remember about you? I think whatever I have done for them. What is according to you humanity का मतलब क्या है? ह्यूमैनिटी का मतलब ये है भाई, इट्स वेरी सिंपल कि आपको दूसरे का फायदा देखना है और अपने आप को नीचे रखना है और दूसरे को. अगर आपको मौका मिला कि आप एक कंपनी का सीईओ हो तो आप क्या करोगे? आई विल ट्राई कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ सैलरी ना दूं, ठीक है, उनकी मेहनत के हिसाब से हर किसी को जो है वो एक्स्ट्रा जो मैं उनके लिए कर सकूं वो सब कुछ करूं. I want to be in your company. आपको एक चांस मिला कि आप कोई आउटसाइड कंट्री ट्रैवल करो फॉर अ बेटरमेंट, आप कौन सा कंट्री प्रेफर करोगे? UAE. There is no place better than UAE in this world. ऐसा कोई सिली मिस्टेक आपने किया आपका वर्क लाइफ में, स्टिल यू रिमेंबर इज यार दिस वाज माय मिस्टेक? There are a lot of. कोई तो होगा. ऐसा मतलब कुछ स्पेसिफिक याद नहीं है, बट आई डू मिस्टेक्स इन माय लाइफ डेली. ओके, आपका कोई बचपन की याद है जो आपको याद है अभी आप सोचते हो हाँ ये भी शरारतें हमने किया है? हाँ, हमने पकड़न पकड़ाई बहुत खेली है. What was the most memorable moment at your life? मैरिज. What is your advice for the married couples? भाई सब्र करो और there is no more beautiful relation in this world than marriage. अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आप किसी को रिलीजन एडवाइस देना चाहते हो क्या एडवाइस देना चाहते हो? सच बोलो. With that note, there's a penalty for you of 45 seconds, and in 45 seconds you have to call 3 people and tell them, hey, it's me Hassan and I'm in a podcast. So who is the first one? My wife. Oh, so let's hear the CEO of the house. Hello. Hi, Hania. Yes, I'm in a podcast. Okay, it's live. It's live. Thank you so much, Hania, to answer the call. He won the hamper. Sorry? He won the hamper because of you. Thank you. Thank you so much. Okay, my brother. Okay. मैं की करा? Oh my dear. Hello. Hi, Atlan. How are you? Yeah, I'm in a podcast right now. Thank you so much, Arslan, to answer. He won the hamper. Thank you. Okay. चलो, Okay. thank you so much. Okay, one more. इतना क्यों सोचना? नहीं भाई, वो जिनको मैं कॉल करना चाहता हूँ ना वहाँ से सिर्फ गाली ही पढ़नी है. Okay. The third one. Okay. Is that? Colleague. Okay. To call right now 50 people I can do it. I think his number is off or something. Hello, अस्सलाम वालेकुम. दानिश भाई, एहसान बात कर रहा हूँ. मैं इस वक्त एक पॉडकास्ट में हूँ और ये मोहम्मद भाई मेरे साथ हैं, आपको हाय कहना चाहते हैं. Thank you, Danish bhai. He won the hamper. Thank you for answering the call. Thank you so much to answer the call. He won the hamper. बहुत शुक्रिया. चलो. Okay, दानिश भाई. So Hassan ji, this is a beautiful hamper which is from Sweet Correction.
They are Thank you from so much. Dubai and they have all new vegan collection. मतलब कि healthy, gluten free, good for Alright. your health. I don't think you need any diet conscious, but yeah, as you know, the आजकल की जो दौर है बहुत health conscious है. They have a new choice of new candies, so try it and do tag them. It's Sweet Connection from Dubai. थैंक यू सो मच मोहम्मद. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉडकास्ट के लिए इट रियली मीन्स ये बहुत मेरे लिए मेमोरेबल चीज़ होगी. और उसके साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट हैम्पर. एंड जैसा कि आपने मुझे बोला कि आपने अभी कहा कि आपको शायद किसी हेल्दी स्टफ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, छोटी सी एडवाइस है, सेहतमंद रहना है ना, मतलब सेहत डजंट मीन कि आप पतले हो या जो भी हो, सेहतमंद रहना है ना, कम खाओ. Exactly. And if you want to try more vegan food, try Sweet Connections food from Dubai. They have deliveries all over the UAE and they have an amazing gluten-free collections. So इसी के साथ our last segment of the show. So what's your ख्वाहिश, your wish, जो आप चाहते हो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, and what's your experience with the podcast? लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दूंगा आपको कि एक्सपीरियंस विद द पॉडकास्ट इज वेरी नाइस. इट वाज लाइक कि जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से करना चाह रहे होते हो, अगर आपको एक अच्छे इंसान के साथ, एक अच्छी पॉडकास्ट टीम के साथ वो मौका मिल जाए, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका. आप बहुत दूर से आए मेरे लिए, यहाँ शारजा के अंदर आए, रासल खैमा से आए, इतना ट्रैवल करके आए, आपको तकलीफ हुई. No, it's not तो bad. मैं मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ. इट अल्हम्दुलिल्लाह. इज़ अ क्वालिटी टाइम एज आई हैव टोल्ड बिफोर इन द स्टार्ट ऑफ पॉडकास्ट के मैं इस टाइम को जो है ना याद भी रखूंगा और एंजॉय भी करूंगा. Inshallah. And what's your ख्वाहिश? Most important. भाई ये ख्वाहिश हर इंसान में होनी चाहिए, आपके पास बहुत सारा हलाल पैसा होना चाहिए. Alhamdulillah. Best thing. हलाल पैसा होना चाहिए, और जब आपके पास वो हलाल पैसा आ जाए तो सबसे पहले जिस चीज़ को आपने याद रखना है ना, वो चैरिटी. Well said, and we pray that ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरा हो जाए. Before we end the episode, any message to the youth? लगे रहो. Really, I had a great time. It was a humor kind of podcast first time where I have interacted with Ahsan, and it was a very good session. It was a positive, full of jags, full of fun. But the most important is being ground to the earth. That's the best thing I would say. With that one, as I always say, that value your priorities in your life, because you yourself will not value, then who will value? And remember, the world is not so easy as we say, but it's your heart who will take you towards your destination. इसी के साथ we are taking a signing out. This is me Muhammad and that's Ahsan. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.